السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کی ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے۔ ماہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر زیورات اتارنے لگی، مگر اس کی ساری حسیات یاور علی خان کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے چوڑیوں سمیت تمام زیورات اتار ڈالے، صرف ایک کنگن دائیں کلائی میں رہنے دیا تھا۔ یاور علی خان عین اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہے تھے۔ آپ کو تو بہت تھکن ہو گئی ہوگی، انہوں نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ ظاہر ہے پلین میں نے ہی گھسیٹا تھا، وہ باوجود کوشش کے اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہ پائی۔ یاور علی خان کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ نے سارے زیورات اتار ڈالے؟ ہم نے تو ٹھیک سے آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ ٹائی کھینچ کر اتارتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھے۔ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کچھ دیکھنے دکھانے کی، وہ تینک کر بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاور علی خان نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ قمیض اتار کر صوفے پر پھینک چکے تھے۔ ماہین کے سامنے یہ ان کی پہلی بے تکلفی تھی۔ ماہین نظریں چرا کر اپنا سوٹ کیس کھول کر جھک گئی تھی۔ بھاری کامدار ساڑی نے اسے عاجز کر دیا تھا، پہنی بھی پہلی مرتبہ تھی، اس لیے بہت الجھ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد پیچھا چھڑانا چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد کوئی آرام دہ لباس پہن لے۔ وہ بیڈ پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے دیر تک اٹھنے کا پروگرام نہ ہو۔ دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے بیڈ پر جماتے ہوئے وہ بغور اسے سوٹ کیس الٹ پلٹ کرتے دیکھ رہے تھے۔ ماہین جی، اس کا انداز ہنوز سرد تھا۔ بات سنو۔ سنائیے، سن رہی ہوں۔ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس طرح نہیں، یہاں آؤ۔ ان کے لہجے میں خاص کیفیت کے محسوس ہوتے ہی ماہین کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔ جب یہ انداز نہیں تھا تو بھی الجھن تھی، اب انداز بدلا ہے تو بھی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی ہونے کے بجائے اسی طرح مصروف رہی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ماہین، ان کے انداز میں بھلا کی رسانیت تھی۔ میں سن رہی ہوں نا، اس نے بھی قدرے دھیمے پن کا مظاہرہ کیا۔ ماہین پلیز ادھر آؤ۔ ماہین عجیب بے بسی کے عالم میں سیدھی ہو گئی کہ بات مانے تو مشکل، نہ مانے تو اس سے زیادہ مشکل۔ وہ سوٹ کیس اسی طرح چھوڑ کر ان کے قریب چلی آئی۔ جی، بیٹھ جاؤ۔ ان کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے بیڈ پر نظریں دوڑا کر اپنے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کی، پھر ان سے کچھ فاصلے پر بالکل کنارے پر ٹک گئی، اس طرح جیسے موقع پاتے ہی بھاگ کھڑی ہوگی۔ ان کے بدلے ہوئے لب و لہجے پر اس کی گھبراہٹ دوہری افتاد تھی، اسی وجہ سے نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم مجھ سے بہت ناراض ہو۔ ان کی نظریں آج بالکل ہی دوسرا انداز لیے ہوئے تھی، جو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ لگتا تھا دل پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کپڑے تبدیل کر کے جلدی سے سو جاؤں، نیند آ رہی ہے۔ اس نے خود کو سنبھال کر بڑا نپا تلا جواب تلاش کیا۔ کراچی میں جو 24 گھنٹے آپ کے ہمارے ساتھ گزرے ہیں، ان میں سے 17 گھنٹے آپ نے سو کر گزارے ہیں۔ کیا سلیپنگ پلز لیتی ہیں؟ انہوں نے انداز نشست بدلا اور آگے کی طرف جھک کر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کیس اور لائٹر اٹھایا۔ اگر کوئی شخص کمرے میں تنہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ پھر کیا فرض کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے سگریٹ سلگائی۔ یہی کہ وہ اپنے کسی ضروری کام میں بھی مصروف ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں انسان مطالعہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات رو بھی رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سارا دھواں اس کی طرف چھوڑ دیا۔ یہ ان کی اپنی منقوہ کے ساتھ پہلی لطیف سی شرارت تھی۔ ماہین نے چونک کر ان کی سمت دیکھا، ساتھ ہی ہاتھ سے سامنے سے دھواں اڑایا۔ حلق میں آنسوؤں کے پھندے لگنے لگے۔ کتنی بڑی بے حسی ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے، اس کے باوجود اس کے احساسات نظر انداز کر دیے جائے۔ اس نے خفگی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بعض اوقات ہمیں جن سے شکایت ہو جاتی ہے وہ ہم سے بڑے دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں، یوں بھی سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک گہری اور حقدار نگاہ ڈالی اور گہرا کش لگایا۔ تو دکھ شیئر کرنا چاہیے نا؟ وہ نظریں جھکائے رسانیت سے بولی۔ نہیں، میرا اصول ذرا مختلف ہے۔ خوشیاں شیئر کرنے کے لیے اور دکھ سہنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جس کا دکھ ہے وہ خود سہے۔ کیا یہ ظرف کا ڈھنڈورا نہیں؟ اس نے طنز کیا۔ ان کی بات کٹ گئی تھی۔ بیوی محرم راز ہوتی ہے، ڈھنڈورے غیروں کے سامنے ہوتے ہیں۔
وہ اسے کن अखियों سے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے، بظاہر کش لگا رہے تھے۔ لفظ بیوی پر اس کی تمام حسیات چوکس ہو گئی، خفگی اور بحث میں۔ وہ جیسے اس نئے نوخیز سے تعلق کو ہی بھول گئی تھی، گویا ماضی کے ماحول میں پہنچی ہوئی تھی۔ ایک دم جیسے سب کچھ ہی بھول گیا تھا کہ وہ کیا بتا رہے تھے اور وہ خود کیا کہہ رہی تھی۔ وہ گود میں رکھے ہاتھ مسلنے لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ریئیکٹ کرے۔ یاور علی خان نے سگریٹ بائیں ہاتھ میں پکڑا، دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کا چھوٹا سا خوبصورت سا ہاتھ تھام لیا اور اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے چھوٹی سی شرارت کر ڈالی۔ بتائیے، 2 دن ہو گئے ہماری شادی کو اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں۔ اتنا اچانک حملہ تھا کہ ماہین سٹپٹا کر رہ گئی، مگر ہاتھ ان کی گرفت سے آزاد نہ کرا سکی۔ جب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو رہا ہو تو بدگمان ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ دوسری پارٹی کسی مسئلے سے دوچار نہ ہو، اسے کوئی الجھن نہ ہو، اس کی طبیعت کسی وجہ سے ناساز نہ ہو۔ جو بدگمان ہونے میں جلدی کرتے ہیں وہ اچھے رفیق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماہین نے ان کے تدلل قسم کے ذات کے سامنے آج پہلی بار مکمل طور پر خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اس کی مہندی سے رچی ہتھیلی سے اتنا پسینہ چھوٹ نکلا تھا کہ یاور علی خان کا ہاتھ بھی نم ہو چکا تھا۔ خان، مشکل وچ تے اسا دی جان پی گئی ہیں کہ نہیں؟ سرسوتی بیچ راہداری میں باری کو روکے ہوئے سرگوشیوں میں مصروف تھی۔ اس کے پاس چابی کہاں سے آئی؟ بنیادی سوال باری کے ذہن میں فوراً ہی آیا تھا۔ چابی تمہارے پاس سے اس کے پاس پہنچی کیسے؟ باری کے پیشانی شکن آلود تھی۔ یہی تو تساں نوں دس رہیاں، اساں نے تے نیندر موت ورگی ہوندی ہے۔ میں اتھے ستی پٹی ساں تے اناں نوں چابی۔ سرسوتی ہنکوں میں اعتراف جرم کرتے کرتے پھر رک گئی۔ تم اتنا لیٹ بتا رہی ہو مجھے؟ انہاں نوں منتیں کریاں سا پر وہ نہیں مننے تے پھر مجبوری تساں نوں آکھ رہیاں۔ خان بچا لیو، وڈے خان تے سوا بنا کے تساں نوں رب دا واسطہ ہے خان، بہت چنگا جی ہے تساں دا، دسو مینوں میں کی کرساں؟ وہ رو رہی تھی۔ کھانے کے وقت دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ باری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اوئے کھول دینے، اوئے بند کر دینے، حکم نہیں مندے آسان نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب رونے کا کیا مطلب ہے؟ تم جاؤ، میں ادھر کے کام نپٹا کر پیچھے جاؤں گا، تم آرام سے سو جاؤ۔ اگر انہوں نے چابی دے دی تو تمہیں دے دوں گا، اگر خیر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، جاؤ تم۔ جیوندے رہو جی، رب لمبی عمر دے۔ وہ فقیرانہ انداز میں دعا دیتی آگے بڑھ گئی اور وہ کچن کی طرف آ گیا۔ میدان کارزار میں اترنے سے پہلے کچھ سوچنا تو تھا، اب تو بغیر پلاننگ کے وہ پیچھے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں کچن میں اس وقت اپنی مرضی کے چائے بناتے ہوئے اچھا خاصا غور و خوض کیا جا سکتا تھا۔ وہاں سے پچھواڑے کی طرف بغیر روک ٹوک کے اور دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر جایا جا سکتا تھا۔ وہاں داخل ہوتے ہی بیچاری ازنی مصروف ماما بلی سے سامنا ہو گیا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں ماما؟ اس نے پہلی رکاوٹ پر صبر کا گھونٹ بھرا۔ آج ذرا دیر تو ہونا ہی تھی خان، گھر میں نئی دلہن آئی ہیں، ماما پر ابھی تک خوشی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ وہ غائب دماغی سے ہوں کر گیا۔ چائے بناؤں خان؟ نہیں ماما، اب تم جا کر سو جاؤ، چائے وائے میں خود بنا لوں گا۔ وہ اسی طرح گویا ہوا کہ جیسے وہ ماما کو بہت جلد وہاں سے غائب دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ بنائیں گے؟ ماما نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہم ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے، اس نے لاڈ کیے۔ پہلی دفعہ نہیں بناؤں گا، بعض اوقات جب تم سو رہی ہوتی تو میں بناتا ہی ہوں۔ یہ تمہارے آرام کا وقت ہے، تم آرام کرو، جاؤ پلیز۔ کہہ رہا ہوں نا میں، اس نے قدرے حکمی انداز اختیار کیا۔ ماما خاموشی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باری نے نظریں دوڑا کر صاف ستھرے اور سمٹے ہوئے کچن کا جائزہ لیا۔ سوئچ بورڈ کے ساتھ ہی اسے الیکٹرک کیٹل نظر آ گئی۔ وہ بڑی تندہی سے چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اتنا برا وقت آ گیا ہے لوگوں پر، خود کام کر رہے ہیں۔ باری نے زور سے چائے کا ڈبہ بند کیا تھا۔ یا الہی، کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کے لوگوں کو رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ اس نے روشی کی آواز پر شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی جھنجھلاہٹ محسوس کی تھی، مگر خاموش رہا۔ روشی فریج میں تقریباً پوری ہی گھس گئی تھی۔ کہا بھی ہے ماما کو میری دوائیں ادھر ادھر نہ کیا کریں، مگر وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دوائیں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ باری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا میں عضلی بیمار ہوں؟ وہ تڑک کر گویا ہوئی۔ باری خاموش رہا۔ نیند نہیں آتی ہے مجھے، ٹرینکلائزر لیتی ہوں اور کچھ۔ کیوں برباد کر رکھی ہے آپ نے اپنی نیندیں؟ کمی کس چیز کی ہے آپ کے پاس؟ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے کپ میں دودھ ڈال رہا تھا۔
कोई अपनी नींद का दुश्मन नहीं होता। अगर किसी की नींद गायब होती है तो मुजरिम कोई और होता है, वो जलने भुलने के अंदाज में कह रही थी। क्या लेती हैं आप? उसे जैसे ये जानकर दिल ही रंज हुआ था कि वो मिस्किन अद्वियात इस्तेमाल करने लगी है। उसने ख्वाब आवर गोलियों के नाम गिनवा दिए। कब बारी के हाथ में लरस कर रह गया। उम्र देखी है आपने अपनी? उसने दुख से उसकी सिम देखा। मैंने तो देखी है, तुमने देखी? उसने गिलास में पानी डाला और एक गोली मुंह में रखी और गटागट पानी चढ़ा गई। बारी लाजवाब सा होकर कुर्सी पर बैठ गया और हल्के हल्के सिप लेने लगा। एक मशवरा है आपके लिए, अगर माइंड न करे। उसने जाती हुई रोशी को मुखातिब किया। जी फरमाइए। वो दरवाजे ही में रुक गई। आप हफ्ते में एक मर्तबा किसी बड़े अस्पताल का चक्कर लगा लिया करें, उससे नींद आने लगेगी। वो तमस्खनाना अंदाज में गोया हुई। शायद आने लगे। वहाँ आप ऐसे वार्ड्स का दौरा किया करें जहाँ सीरियस किस्म के मरीज़ होते हैं, जिनकी तकलीफ़ देखने वालों के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त होती है, जो ऐसे अमराज में मुब्तला हैं कि जीते हैं न मरते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप तो मराद याफ्ता तबके में ही नहीं, इंसानों में भी इंतहा नेमत याफ्ता हैं। फिर आपको एहसास शुक्र होगा, तबीयत में बेहद ठहराव और सुकून आ जाएगा और ख़ुद ब खुद नींद से आंखें बंद होने लगेंगी। उसने बात ख़त्म करके उसकी तरफ देखने के बजाय चाय का कप उठाकर होठों से लगा लिया। बस, उसने तंजन कहा। बस, उसने भी वही अंदाज़ इख्तियार किया। नादान दोस्त, सारे दुख एक तरफ, दिल का दुख एक तरफ। वो इतना कहकर दरवाजे से बाहर निकल गई। बारी ने गहरा सांस लिया। आखिर इंसान की मत इतनी क्यों मारी जाती है? बाहर सब दोस्त ही दोस्त होते हैं और इंसान अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है। न जाने क्यों यूँ महसूस हुआ जैसे कहीं से आँच आ रही हो और दिल मोम की तरह पिघलने लगा हो। उसने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करते हुए इस कैफियत से पीछा छुड़ाया और कप सिंक में रखकर वहीं खड़े खड़े कुछ सोचने लगा। एक नए मौके से दो चार होने का वक्त करीब था। घबरा रहे हो मिस्टर बारी? को इसके अंदाज़ पर मुस्कुराने लगा। अरे नहीं, क्या घबराना, जब सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है, अब किसी शय के खो जाने का खौफ नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा बेफिक्र वो है जो अपनी मता गंवाकर रोकर फारिग हो चुका हो। वो मुस्कुराते हुए पुरसुकून अंदाज में बाहर आ गया। पूरी हवेली पर सन्नाटे और तारीकी का राज था। कुत्तों के भौंकने, गधों के चौंक कर रेंगने और घड़ों के हिनहिनाने से माहौल बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। वो बहुत मोहतात अंदाज में तवील और अरीज़ अहाता पार करके हवेली के उगबी हिस्से में आया था। मुद्दतें गुजर गईं। वो यहाँ से वहाँ आज़ादाना दंदनाता था और आज कदम कदम पर कोई जंजीर छनक रही थी। वो राहदारी में पहुँचा और लाइटें रोशन कर दी और फ़ौरन सबसे आखिरी बनी एक कोठरी में आया जो गालिबन स्टोर की नीयत से बनाई गई होंगी की तरफ देखा। बाहर आती रोशनी ये बता रही थी कि कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो चंद सानिया अपनी जगह खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर फैसला कुन अंदाज में आगे बढ़ा। एक दरमियानी बंद कमरे में बड़ा सा ताला झूल रहा था। उसने जेब से चाबियाँ लगाकर देखना शुरू की। बिल आखिर एक चाबी लग गई और ताला खुल गया। उसने ताला निकालकर बगली जेब में डाला और कोठरी की सिम बढ़ा। वहाँ देखने को कुछ ना था। वो चौंका, फिर उलझकर कुछ सोचने लगा, फिर एकदम ध्यान जफरी के कमरे की तरफ गया। उसने सर उठाकर जफरी के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खुसर फुसर की आवाज़ें आईं। फिर दरवाज़ा खुल गया। फिरोज़ी कुर्ते शलवार में मलबूस झूमर बग़ैर दुपट्टे के उसके सामने खड़ी हैरत से पलकें झपका रही थी। इतने खुशनसीब हैं हम, यकीन नहीं आ रहा। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। रास्ता दीजिए मुझे, मैं अंदर आना चाहता हूँ। उसने दरवाजे के दरमियान में खड़ी झूमर से बड़े खुरदरे लहजे में कहा। हमें पता होता इस घड़ी तुम आओगे तो कुछ इस तरह इंतज़ाम करते कि तुम्हारा ये जुमला सुनकर खुशी से बेहोश हो जाते, मगर अफसोस फ़िलहाल हम तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसा करो, थोड़ी देर बाद आना। आप औरत हैं और मैं मर्द हूँ, मगर आपके हिस्से की हया भी मुझे करना पड़ती है। हटिए एक तरफ। उसका मर्दाना जलाल भी बड़े गज़ब का था, मगर झूमर ढिठाई से अपनी जगह खड़ी रही। प्लीज़ मुझे रास्ता दीजिए अंदर जाने का। वो जैसे ज़िद चौरा था। तुम तो हो ही अंदर, तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत? वो बदस्तूर शोखी से बोली। तो आप नहीं हटेंगी? उसने बरहमी से झूमर का चेहरा देखा। नहीं, क्या कर लोगे? वो खिलखिलाई। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दें। उसने जैसे बहुत ज़्यादा रसानियत का मुजाहिरा किया था। मैं भी जनाब से कह चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाइएगा। वो मुस्कराई।
मारी ने कई गहरे गहरे सांस लिए, फिर एक झटके से झूमर का बाजू पकड़कर आगे की तरफ खींचा और फिर बाईं तरफ धकेल दिया। ये देखे बगैर कि उसका क्या हशर हुआ है, वो कमरे में दाखिल हो गया। वो फसाद की जड़ जंजीर समेत खड़ी हुई गालिबन दोनों की तकरार बगौर सुन रही थी। मारी को अंदर आते देखकर उसने नज़रें झुका ली। मारी ने उस पर नज़र डालना भी ज़रूरी नहीं समझा। अपने ठिकाने पर चलो। जाना उसने अपने ठिकाने पर ही, ज़रा सी देर आज़ाद बैठने दो, तुम्हारे जेब से क्या जाता है। झूमर अपनी कोहनियाँ सुलाती हुई अंदर आ गई थी। आप बड़े खान के ज़ाती मामलात में मदाखलत न करें तो आपके हक़ में बेहतर है। आगे बढ़ो भाई, जो मेरा जी चाहेगा मैं करूँगी। देखो मैंने इसका सर धुलाया है, बाल बनाए हैं, कर लो जो मेरा करना है। और हाँ, जो मेरा खाना आता है वो भी मैं इसे खिलाती हूँ, बल्कि हम दोनों साथ ही खाती हैं। हैवानों की बस्ती में एक ये इंसान है और एक मैं। जाओ जाकर कह दो उनसे। झूमर बिस्तर पर बैठकर अपने दुपट्टे से कोहनी से खून साफ़ करने लगी। शायद चोट ज़्यादा लग गई थी। बारी उसी की तरफ मतवज्जा था। खून देखकर अजीब से एहसास जुर्म में मुब्तला हो गया, मगर ज़ाहिरन नज़र बचा गया। चलो, उसने औरत को आगे चलने का इशारा किया। वो आगे बढ़ी। जंजीर छनक उठी। कहाँ जा रही हूँ? मेरी मौजूदगी में किसी का कहना मानने की ज़रूरत नहीं। झूमर ने फर्श पर पड़ी एक जंजीर थामकर उसे आगे बढ़ने से रोका। बारी ने नहायत नाराज़गी से उसकी तरफ देखा। आप मसला न बने, हमें मसले हल करने भी आते हैं। छोड़िए आप, उसने भी जंजीर थामकर झटका देते हुए कहा। हमें भी मसले पैदा करने आते हैं। अभी यहाँ के और भी कमरे खोलूँगी, बता देना। वो बरहमी से गोया हुई। भाभी, बंदी को झूमर कहते हैं। झूमर ने उसकी बात काट दी और खिलखिला पड़ी। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मुझ में इतनी कुव्वत तो है कि आपको भी इसी के साथ इसी कोठरी में बंद कर दूँ। उसने बहुत ज़ब्त किया। तो फिर अपने कमरे में बंद कर दो, जब बंद ही करना है। हम तुम एक कमरे में, वो गुनगुनाई। शट अप, मत गिराइए ख़ुद को इतना। किस खाते में घटा रही हैं ख़ुद को इतना। वो बरहम हुआ। खान, यावर अली ने दूसरी शादी कर ली है। औरत ने उनकी बहस से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करते हुए खोए खोए अंदाज में सवाल किया। तुम्हें क्या, अगर वो तीसरी भी कर ले? मारी ने सुलग कर जवाब दिया। सरस्वती बता रही थी बड़ी कम उम्र दुल्हन है, कहाँ से आई है बदनसीब। वो तो ये भी बता रही थी कि रोशी की सगी खाला है, मगर मुझे यकीन नहीं आया। ऐसा तो क़यामत तक नहीं हो सकता। वो खोए खोए अंदाज में बोली। तुम्हें खामखा हल्कान होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे अपने मामलात हैं, आगे बढ़ो। उसने फिर जंजीर को झटका दिया। औरत चल पड़ी, मगर चंद कदम फिर रुक गई कि झूमर के हाथ में उसके दाएं पांव की जंजीर थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मारी ने झुल्लाकर एक फ़ैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। झूमर की तरफ बढ़ा, उसके हाथ से जंजीर झटका देकर हासिल की और बाजू से पकड़कर उसे बेड पर धकेल दिया। आराम से बैठिए, करता हूँ मैं आपका भी इंतज़ाम। तुम क्या मुँह देख रही हो, चलो। उसने अपनी आवाज़ में जी भरकर सख्ती समोई। औरत चल पड़ी। मारी ने उसे कोठरी में पहुँचाया और बाहर से दरवाज़ा बंद करने लगा। ताला चाबी नहीं चाहिए क्या? झूमर की शरारत भरी आवाज़ करीब से ही सुनाई दी। मारी ने उसकी तरफ देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। औरत बहुत पुरसुकून अंदाज में अपनी कोठरी में चली गई थी कि यह तो ज़िंदगी भर के लिए मिला था, हमेशा का जहनी समझौता, अब्दी आमादगी। मारी ने दरवाज़ा बंद किया, फिर बगली जेब से ताला निकाला और लगा दिया। झूमर उसके पहलू में आ खड़ी हुई थी। वो उसकी तरफ पलटा। अपने पास रखिए अपना ताला चाबी। उसने चाबियां वापस बगली जेब में डाली और लंबी लंबी डग भरता हुआ आगे बढ़ गया। झूमर कदरे दम बखुद उसे राहदारी के मोड़ तक घूरती रही। लाल खान हुनूस कमरे में बंद था। बालो बदस्तूर बरामदे में बैठी हुई थी। रात खासी भीग चुकी थी। बालों को सिर्फ एक मलाल घेरे हुए था कि वो अब नहीं आएगा। कभी कभी सोच अपनी गर्ज व ख्वाहिश से आज़ाद होती थी तो अजीब सा खौफ रगो पै में उतरने लगता था कि जैसे अभी लाल खान दहाड़ता हुआ बाहर आएगा और अपने रिवॉल्वर से उस पर फायर कर देगा। मौत का क्या है, वो तो आना ही है, मगर कुछ तो दिल ठंडा हो। कभी मन चाहे मौसम की परवाही तो चले, कभी घड़ी भर के लिए ख्वाहिश ताबीर के निशान तक तो पहुँचे। कभी यूँ भी तो महसूस हो कि हमें भी ज़िंदगी के हवा ने छुआ है। कभी तो ये एहसास हो कि चाँद किसी की छवि लेकर आया है। कभी तो रूह वसल की सरशारी में सरमस्त होकर रक़्स करे। कभी तो इंतज़ार हद से गुज़रे। कभी तो मन चाहिए आमद हो। कभी ज़िंदगी रोए तो आइंदा खुशी का आसरा जागे। कभी दिल जले तो मन चाहिए तसल्लियों को फुहार बरसे। कभी मर जाने को जी चाहे तो वो ज़िंदगी आंखों में सजा कर लाए।
कभी नेमतें त्याग कर जोग भरने निकलें तो कोई शहर सजा कर हमें घेरे। कभी फूट फूट कर रोएं तो कभी कूट कूट कर खुशियाँ दिल के दामन में भरने आएँ। कभी शहरक काटने का जी चाहे तो गुलाबों के हार आए। कभी नाउमीदी का अंधेरा बढ़े तो कोई अमकान के चिराग रोशन करने आए। रे से रोटी और दाल से दिल, कायदे में दाल पहले आता है। उसके जज्बातियात ख़तरनाक हद को छू रही थी। बालों को पुष्ट से लाल खान की आवाज़ आई थी। वो चूँकि नहायत गहरे ख्यालों में थी, चौंक कर उछल पड़ी। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। अंदर कमरे में आओ, ज़रूरी बात करना है। जल्दी आओ, मेरे पास वक्त नहीं है। वो सर्द और बेतासिर लहजे में उससे मुखातिब था। वो आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई और उसके पीछे चल पड़ी। लाल खान बिस्तर पर बैठ गया था। वो खड़ी रही। बैठ जाओ, उसने फ़ासले पर पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या दुख है यहाँ? उसने बहुत अफसरदा अंदाज में उससे सवाल किया था। मैं हमेशा से दुखी हूँ, मेरे दुख कभी दूर नहीं हुए, वो बेखौफी से बोली। खाने पीने की कमी है? मादी और रूहानी कुव्वतें उलझ पड़े तो इस तरह के सवाल लाजमी होते हैं। एक दिल है मेरा, हमेशा से नंगा भूखा, मेरी भी नहीं सुनता, वो सरदा भरकर गोया हुई। जब से लाल खान का सियाह चेहरा सुर्ख होकर तांबा बन गया। कोई मलाल, कोई खैरत नहीं? लाल खान ने उसका चेहरा देखकर सवाल किया। नहीं, बड़ी घुटन थी। खुश हूँ कि सच बोलने का वक्त भी आया, उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया। कब से चल रहा है ये चक्कर? वो बहुत धीमी आवाज़ में पूछ रहा था। जिस दिन उसने मेरी रहनुमाई करते हुए शेर पढ़ा था, वो इतने आराम से बोली कि लाल खान दम बखुद सा रह गया। पहल उसकी तरफ से हुई थी। उसकी आवाज़ पर लर्जिश गालिब आने लगी। नहीं, उसे अल्लाह ने ऐसी तौफीक ही नहीं दी, उसे तो मुर्दों को पीटने की आदत है। उसने इतनी सच्ची गवाही दी कि लाल खान के रोम रोम में उसकी सच्चाइयों का यकीन उतर गया, वगरना वो उस पर इल्ज़ाम धरकर आधा बोझ उसकी तरफ भी सरका सकती थी। क्या बात है उसमें ऐसी? एहसास कमतरी से लाल खान आधा हो गया। यही तो मैं अपने आप से पूछ रही हूँ अब तक। बालों के सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया। तुम्हें मालूम नहीं बालो, औरत के बेवफाई से मर्द अपनी नज़रों में ही जलील हो जाता है। तुमने हमेशा के लिए मुझे जलील कर दिया है। उसकी आवाज़ में बला की शिकस्तगी थी। तुम मुझे गोली मार दो, धक्के देकर घर से निकाल दो, मुझे सब मंजूर है, वो बोली। लाल खान ने उसकी मजबूती और अपनी कमज़ोरी को बेपनाह महसूस किया। शुक्र है कि तुमने मुझे पूरा मरने से बचा लिया। औरत की दगाबाजी का दुख बड़ा सही, मगर दोस्त का भरोसा बाकी है। मैं उसकी पहले से ज़्यादा इज़्ज़त करूँगा। अपनी छत कमज़ोर हो तो बारिश को बुरा भला क्यों कहे। मेरी तरफ से अब तुम पर कोई पाबंदी नहीं। सुबह ये घर छोड़ देना। अब तुम इस कमरे से जा सकती हो। जो दुख तुमने दिया है मुझे, एक दिन कुदरत उसका हिसाब खुद करेगी। वो उसकी तरफ से पुश्त करके बिस्तर पर दराज हो गया। बालो चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। उसका ख्याल तो ये था कि हंगामा बहुत ज़बरदस्त होगा, सुबह तक वो अपने ज़ख़म सेकेगी। ये लाल खान तो बहुत समझदार निकला। वो ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए नापसंदीदा इंसान को पहली मर्तबा सराह रही थी। लड़कियों की सज धज देखने के काबिल थी। जैसे वो दुल्हन का दीदार नहीं करेंगी बल्कि दुल्हन उन्हें नंबर देगी। तुम्हारे पास ब्लू चूड़ियाँ हैं तो वो क्यों नहीं पहनी? तानिया ने रूबी को टोका। क्या फ़ोटोग्राफी भी होगी? रूबी ने सादगी से पूछा। फ़ोटोग्राफी की ऐसी तैसी, जब तुमने मैचिंग की है तो पूरी करो। जब ये 2 किलो का हेयरबैंड तक ब्लू लगाया है, उसने छेड़ा। ख़बरदार, जो तुमने इस हेयरबैंड के शान में गुस्ताखी की। ये उनकी अजीज़ जान दोस्त पूरा सदर सारा कोची बाज़ार छान कर लाई थी पेशावर से। मियाँ ने तानिया को तादमीनी अंदाज में घूर कर कहा। हाँ तो लाई थी ना, तुम क्यों जल रही हो? रूबी ने खफगी से कहा। भाई, इस खुशी के मौके पर तकरार कैसी? जिसका जैसे दिल चाहे तैयार हो, कोई ट्रॉफ़ी तो नहीं मिलेगी। गुल्लो सफ़ेद झंडा लहराने की आदत से मजबूर थी। अरे क्या रोशी आज सोती रहेगी? जाकर उसे उठाओ। हम सब दुल्हन के पास जाएं और वो हमारे साथ ना हो तो वो क्या सोचेंगी? जरी ने दूसरी किस्म का वावेला शुरू किया। मैं गई थी उसे उठाने, यूँ घुर्राई जैसे साबुत निगल लेगी। हिना ने अपनी बिबदा सुनाई। हैं, क्यों नहीं उठ रही? कहाँ तुम्हारे खुशी के नींद ही नहीं आ रही थी? मोना ने हिज़्ब तौफ़ीक हैरत का इजहार किया। बारी से कहो, वो दस्तक देकर बस आवाज़ दे डाले। दुनिया के उस कोने पर भी सो रही होगी तो उठ जाएगी। शीनो मुस्कुराई। बिल्कुल भी सूट नहीं करती आपा आपकी ये छेड़छाड़। वो दिलावर अली ख़ान की पोती और यावर अली ख़ान की डीसी की इकलौती बेटी है। मजाक भी उसके स्टैंडर्ड का किया कीजिए।
लाली ने नागवारी से उन्हें टोका। आहा, ये कमबख्त स्टैंडर्ड्स। शीनो ने आ भरी, भला वो बाज आने वाली थी, मगर आजकल वो इतनी देर तक क्यों सोती रहती है? मोना परेशान हुई। नशा चढ़ा हुआ है शायद। शीनो ने फिर हंसकर टुकड़ा लगाया। किस चीज़ का? हिना ने बुरा मानकर उनकी तरफ देखा। भाई, इतनी क्यूट, इतनी स्मार्ट सी वालदा आई हैं। शीनो ने माहौल के तेवर देखकर बात ही बदल डाली। यूँ भी रोशी तो मौजूद नहीं थी, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। मैं जाकर उठाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे नहीं उठती। गुल्लो उठ खड़ी हुई। खटाई लेती जाओ, सुना है खटाई से नशा टूट जाता है। शीनो हंसी। फिर आप उतर जाएं उसके मैदे में, ये टोटका ज़्यादा मौसर होगा। रूबी बड़ी देर से बर्दाश्त कर रही थी, जल कर बोली। उसी लम्हे बारी बड़ी इजलत में हॉल में दाखिल हुआ और दीवार में फिट टेलीफोन की तरफ बढ़ा। बारी, रोशी उठ गई क्या? गुल्लो ने सादगी से पूछा। शीनो खंखार कर ताज़ा अखबार खोलने लगी। लड़कियों की हंसी छूट गई। गुल्लो नकोसी बनकर उन्हें घूरने लगी। बारी, जो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया था, अलग हैरान परेशान सा हंसती हुई लड़कियों को देखने लगा। जी, मुझे क्या मालूम, उसने बिलाखिर संभल कर जवाब दिया और फ़ोन करने लगा। भाई, मेरा मतलब ये था कि आते हुए तुमने उसे यहाँ वहाँ कहीं देखा तो नहीं? अमूमन जब वो लेट उठती है तो किचन में नाश्ता करती है। गुल्लो ने दांत पीसकर लड़कियों को देखा और वजाहत की। नहीं जी, मुझे अफसोस है, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। मारी ने नंबर पुश करते हुए बड़े मसरूफ़ और जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। देखो, बेचारे को अफसोस है। शीनो ने अखबार का सफ़ा बदलते हुए रूबी को छोड़ा। रूबी मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। जाती हूँ मैं उसके पास, तुम लोग अपना अपना काम करो। गुल्लो बाहर निकल गई। या अल्लाह, क्या पूरा अस्तबल बेच कर सोई है? गुल्लो ने दरवाज़ा धड़धड़ाया। क्या है आपा? रोशी झूमती डोलती दरवाजे खोलने आई थी। होश की दवा करो, 10 बज रहे। बड़ी अम्मी को पता चल गया तो खूब क्लास लेंगी। गुल्लो बोलती हुई अंदर आ गई। रोशी धड़ाम से फिर बिस्तर पर ऊँध गई थी। क्या तीसरा पीकर सोई थी? उन्होंने झुककर उसका बाजू ज़ोर ज़ोर से हिलाया। ये क्या होता है? वो ख्वाबनाक आवाज़ में पूछ रही थी। गांजा, जो दीन मोहम्मद चौकीदार पीता है। वो हंसी। ये क्या होता है? तुम्हारा सर होता है। ये बड़ा गरीब किस्म का नशा होता है, मगर बहुत चढ़ता है। अब तुम उठ जाओ शराफत से। उन्होंने एक दिया जमा कर उसकी पुश्त पर। आपा, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, बिलीव मी। रोशी, खाला का सोचो क्या कहेंगी, वहम पड़ जाएंगे उन्हें कि शायद तुम खुश नहीं हो और ये अच्छा नहीं होगा। यावर चचा क्या सोच रहे होंगे? मगर मैं क्या करूं, गोली खाई हुई है मैंने, मेरी आंखें नहीं खुल रही। बताइए क्या करूं? आप लोग कह दीजिएगा मेरी रात से तबीयत ख़राब है। वो गुनूदगी में बोल रही थी। गुल्लो ने उसे झिझोड़कर सीधा कर दिया। क्या करती रही हो उल्टी सीधी हरकतें? क्यों खाई गोली? गुल्लो सख्त नाराज़गी से पूछ रही थी। नींद नहीं आ रही थी और यूँ लग रहा था अगर चंद घंटे और जागती रही तो मेरी दिमागी शरियानें फट जाएंगी। क्या करती फिर? वो मुंह दूसरी तरफ फेरे हुनूस खाविदा लहजे में बोल रही थी। गुल्लो चंद सानिए बड़े फ़िक्रमंद अंदाज में उसकी तरफ देखती रही, फिर झुककर उसकी पेशानी से बाल समेटे। रोशी, मेरी जान, क्यों नहीं आ रही थी नींद? और क्या सोच रही थी? क्या सोचती हो इतना? क्या आफत आई है तुम पर? और तुम तो खाला के आने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर? गुल्लो दर हकीकत बहुत परेशान हो गई थी। वो तो मैं हूँ, मगर आप फ़िक्रमंद ना हो, ये बात नहीं है। बल्कि कोई बात नहीं है, प्लीज़ आप मुझे सोने दें। उसने हाथ जोड़ दिए। सारे घर में सबसे बड़ी मोरल सपोर्टर तो आप हैं मेरी। बस आज सो लेने दीजिए। आइंदा के लिए जो कहेंगी करूँगी, उम्र भर जाग लूँगी। वो फिर औंधी हो गई। गुल्लो उठ खड़ी हुई। वो समझ गई थी कि बेकार की मेहनत होगी। मुश्किल ही है जो आइंदा 1.5-2 घंटों तक उठ सके। वो दरवाज़ा बंद करके पलटी तो बारी पर नज़र पड़ी। वो बाबा साहब की ख्वाबगाह से निकल रहा था। बारी के बच्चे इधर आओ। उन्होंने मसनूई किस्म की खफगी के साथ उसे पुकारा। जनाब। वो भी मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ आया। ये तुम ला कर देते हो उसे ट्रैंक्विलाइज़र? फ़र्द जुर्म है या तफ्तीश? वो शरारत से मुस्कुराया। बताओ, हाई डोज लेकर सो रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। यकीनन तुम ही से मंगाई होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को आप जैसी अहलियत ही के लोग दरकार होते हैं। पूरी यकीन, अपने शुकूक को ईमान का दर्जा देने वाले, गद्दी पर हाथ रखते ही उल्टा लटकाने वाले। ऐसा घास खाया हुआ लगता हूँ आपको? वो मंगाएंगी और मैं ला दूँगा। रात मेरे सामने किचन में फ्रिज से निकाल कर मोहतरमा ने गोली खाई है। तुमने रोका नहीं, पूछा नहीं? गुल्लो ने हुनूस नाराज़ लहजे में सवाल किया। रोक नहीं सकता, पूछ नहीं सकता। पूछ लिया था, मगर पूछने से क्या होता है? सोने दीजिए। उन्होंने कौन सा घोड़ों की चंपी करना है?
मगर बात तो तशवीशनाक है, वो ऐसा क्यों करने लगी है? क्या मसला है, उसे मालूम तो होना चाहिए। गुल्लो फ़िक्रमंद सी कह रही थी। हौसले की कमी है, मसला हल करने के बजाय तारी कर लेती हैं, खुद ही नॉर्मल हो जाएंगी। आप फ़िक्रमंद ना हो, बारी ने तसल्ली दी। लो, खुद ही कैसे नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल होते होते तो उसे ख्वाब आवर दवाओं की आदत हो जाएगी। आखिर कल को उसकी शादी होगी, क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? गुल्लो ने उसी अंदाज में कहा। बारी उनकी दूर अंदेशी पर मुस्कुरा दिया। और कर भी क्या सकता था? कोई बात तो बहरे हाल है, वरना यूँ तो नहीं होता। वो तो अभी बहुत कम उम्र है बारी। आप फ़िक्रमंद ना हो, कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएंगी वो। बारी ने नज़र चुरा कर जवाब दिया। शायद तुम्हें पता ना हो, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, कहीं फिर कुछ कर ना बैठे। हालांकि बारी, नईम बहुत अच्छा है ना? वो बारी का चेहरा देखने लगी। जी, क्या शक है इसमें? बारी दूसरी तरफ देखने लगा। हमारे यहाँ लड़कियाँ किसी को पसंद करने की जुर्रात तो कर नहीं सकती। जहाँ बड़े रिश्ते कर देते हैं वहीं अपने जहर मोड़ लेती हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी और को पसंद करती हैं। क्यों? वो दर हकीकत बहुत परेशान थी। जी, बारी ने जल्दी से कहा और रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाने लगा। कहीं जाओगे? गुल्लो को उसका टाइम देखना जैसे नागवार गुजरा। जी, सिराय जाना है, काका जान को पेशी पर जाना है, उन्होंने बुलवाया है, उसने जवाब दिया। एक तो काका जान के मसले ख़त्म नहीं होते, वहाँ उन्हें कोई बंदा नहीं मिलता, इतनी दूर से तुम्हें दौड़े लगवाते हैं। वो झुल्लाई। बहुत अरसा हो गया, टीपू भी नहीं आ रहा। अब तो खासा बड़ा हो गया होगा, उर्दू बोलना आई उसे, या अब भी अंग्रेज़ी में ही पराठा मांगता है। वो धीरे से हंसी। मैंने भी उसे खासे अरसे से नहीं देखा, वो मेरी कॉन्वेंट में होता है ना, वैसे आ गई होगी उसे उर्दू बोलना। वो हंस दिया। सिराय वाले हवेली में यहाँ की तरह रौनक तो नहीं होती होगी। कौन कौन होता है वहाँ? गुल्लो को नया सवाल सूझ गया। वहाँ डेकोरेशन ज़्यादा है, यहाँ बंदे ज़्यादा हैं। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। काका जान से कहना इस मर्तबा टीपू को छुट्टियों के दिनों में चंद दिन के लिए यहाँ भेज दे, बहुत दिन हो गए हमें उसका अंग्रेज़ी नखरा देखे हुए। गुल्लो हंसकर आगे बढ़ गई। बारी भी बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिया। बड़ी अम्मी ने बड़े एहतमाम से तैयार हुई लड़कियों को देखा तो वजह दरियाफ़्त की। ये जान करके अनकरीब यावर अली ख़ान की ख्वाबगाह पर हमला करने वाली हैं। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। यहीं रहो तुम लोग, दुल्हन नाश्ता कर लेंगी तो मैं ख़ुद ले आऊँगी यहाँ। अब लड़कियाँ बेचारियाँ मुँह लटकाकर इंतज़ार में बैठ गई थी। तकरीबन 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद आलमताब माहिन के साथ हॉल कमरे में दाखिल हुई। कमरे में एकदम हलचल से शुरू हो गई। शॉकिंग पिंक कामदार कुर्ते शलवार और दुपट्टे में माहिन बहुत खुश, बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी। अल्लाह, कितने लकी हैं यावर मामू, कैसी अच्छी दुल्हन मिली है इस उम्र में उन्हें। मरियम रूबी के कान में मनमनाई। अब बूढ़े तो नहीं हैं वो, उनकी पहली शादी तो खासी कम उम्र में ही हुई थी। माहिन उन सब के सलाम वसूल करके सोफ़े पर बड़ी अम्मी के साथ बैठ चुकी थी। उसकी नज़रें इधर उधर रोशी को तलाश कर रही थी। कहाँ तो पुरशौक अंदाज ये बता रहा था कि बेताबी सवा है, कहाँ ये कि अब तक नज़र नहीं आई। क्या आप यावर चचा के साथ हरीपुर चली जाएंगी? तानिया ने पुरशौक अंदाज में उसके सरापे का जायज़ा लेते हुए पूछा। माहिन आलमताब की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा कर रह गई। नहीं तो क्या तुम्हारे साथ रहने के लिए यावर मामू इतनी दूर से दुल्हन लाए हैं? लाली चटक कर पड़ी। मगर कुछ दिन तो आपको हमारे साथ रहना चाहिए। यावर मामू तो अपनी तरह कर लेंगे, वरना आपको जिस तरह वो नज़र आते हैं पता चलता है रात आए थे, हम सो कर भी नहीं उठे और वो चले भी गए। तानिया ने अपने खदशात जाहिर किए। रोशी कहाँ है? बड़ी अम्मी ने मौजूद लड़कियों पर नज़र डालकर कदरे चौंक कर पूछा। सो रही है। मरियम वैसे ही लाउबाली थी, झट बोल पड़ी। हैं, ये कौन सा वक्त है सोने का? आलमताब बरहमी से बोली। माहिन भी चौंक पड़ी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है बड़ी ममानी, दवाई खाई थी ना उसने, बस इसी वजह से सो रही है। गुल्लो ने झट वजाहत की। क्या हुआ है उसे? माहिन एकदम परेशान हो गई। कुछ नहीं, वैसे ही टेम्परेचर सा हो गया था। उसने गड़बड़ाकर आलमताब की तरफ देखा। ठीक है, उसे आराम करने दो, मैं खुद चली जाऊंगी उसके कमरे में, उसने धीमी आवाज़ में कहा। गुल्लो, अपनी ममानी को ले जाओ, फिर रोशी के पास। हो सकता है यावर माहिन को लेकर 1 घंटे के बाद हरीपुर रवाना हो जाए। आलमताब गुल्लो से मुखातिब हुई। गुल्लो उठ खड़ी हुई और माहिन भी। रोशी को लेकर यहीं आ जाइएगा, अभी तो हमने ठीक से दुल्हन को देखा भी नहीं है ना बिसोरी। आलमताब ने उसकी सर पर शफकत भरे अंदाज में एक चपत लगाई और उनके बाहर जाने से पहले खुद चली गई। गुल्लो माहिन को लिए रोशी के कमरे में चली आई।
रोशी, देखो कौन आया है। गुल्लो ने उसका बाजू दबोचकर सीधा किया। रोशी ने बमुश्किल आंखें खोलकर सामने देखा, फिर खज्जल सी होकर उठकर बैठ गई। आप? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। इस कदर सोना चांदी बन रहा है। माहिन उसके बिस्तर पर बैठकर मुस्कुराते हुए गोया हुई। जी बस वो तबीयत ठीक नहीं है। पापा चले गए क्या? माँ उसने चौंक कर पूछा। कहाँ? माहिन की नज़रें झुक गई। ये नई दुल्हन का बेसाख्ता सा अंदाज़ हुआ करता है अपने रफ़ी के सफ़र के नामो ज़िक्र पर। हरीपुर। उसने अपने हाथों से बाल समेटे। नहीं, शाम को जाएंगे। आप भी? उसने पोनी बनाते बनाते रुक कर माहिन का चेहरा देखा। जाहिर है वो मुस्कुरा दी उसके बचगाना सवाल पर। मैं तो नहीं जाने दूंगी आपको। ये भी कोई बात हुई? हम तो अभी ठीक से आपसे मिले भी नहीं। उसका अंदाज़ कतन था। कभी कभी जालिम समाज शादी के बाद भी आता है। गुल्लो हंस कर बोली। वो उसका बिखरा हुआ कमरा समेटने लगी थी। माहिन भी मुस्कुरा दी। पापा क्या कर रहे हैं? उसने जाने क्यों पूछा। फ़ाइलें देख रहे हैं, उसने आम से अंदाज में जवाब दिया। अब भी फ़ाइलें देख रहे हैं? आपको बुरा नहीं लगा? उसने तरोताज़ा और खुशबुओं के नूर से नहाई माहिन को देखा। मैं तो उधर आ रही थी, तुम लोगों के पास वो अकेले हैं। अच्छा है, मसरूफ़ हैं। माहिन ने मुस्कुरा कर गुल्लो की तायीद चाही। जवाबन गुल्लो ने मुस्कुराहट लबों पर बिखेरी। रोशी मुँह हाथ धोने बाथरूम में चली गई। बाबा साहब और यावर मामू ने एक से एक चीज़ इसको मुहैया की हुई है, मगर इसमें ज़रा सलीका नहीं है। गुल्लो उसकी ड्रेसिंग टेबल ठीक करते हुए माहिन से मुखातिब हुई। ये देखिए, ये हेयर ब्रश, इसका दस्ता हाथी दाँत का है। यावर मामू ने बाहर से ला कर दिया था। मुलाहिज़ा कीजिए, स्टूल के नीचे पड़ा हुआ है। आप लोगों के नज़दीक सोने चांदी हाथी दाँत की अहमियत होगी। जब बंदे का दिल ही खाक हो तो धूल मिट्टी हैं ये सब कीमती चीज़ें। हैं तो हैं, अब क्या सर पर रख कर नाचे? वो तौलिए से चेहरा पोंछते हुए तिनक कर कह रही थी। खुदा ना खास्ता भाई, तुम्हारा दिल क्यों खाक होने लगा? बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। माहिन ने टोक दिया। रोशी ने अजीब से अंदाज में गहरी सांस ली और बालों में ब्रश चलाने लगी। आप कहाँ जा रही हैं गुल्लो आपा? उसने बाहर जाती हुई गुल्लो को आईने में देखते हुए मुखातिब किया। मामा को कहती हूँ तुम्हारा नाश्ता भिजवा दे। तुम कितनी लकी हो रोशाने, सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। माहिन ने जैसे उसका दिल बढ़ाया। सब क्या, बस ये गुल्लो आपा सबका ख्याल रखती हैं, बस आदत से मजबूर है बेचारी। मैं कहीं जाऊँ तो यही सबसे ज़्यादा याद आती है मुझे। आपको मालूम है जिनसे ये इंगेज है वो बड़े गुस्से वाले हैं। रोशी ने माहिन को इतला दी। अच्छा, फिर तो निभ जाएगी। ख़तरा वहाँ होता है जहाँ दोनों पार्टनर्स गुस्से वाले हों। क्या नाम है गुल्लो के मंगेतर का? मुसव्विर। बड़ी अम्मी के सगे भतीजे हैं, जरी अपी के भाई। अच्छा, माहिन फ़ौरन समझ गई। गुल्लो का असली नाम क्या है? गुलनार ज़फ़ार अली ख़ान। वो मुस्कुराकर माहिन के पास आकर बैठ गई। आपने मेहंदी पार्लर से लगवाई थी? उसने माहिन का हाथ थाम लिया। नहीं, मेरी दोस्त आबिंदा ने लगाई थी, बड़ी एक्सपर्ट है वो। वाकई बहुत नफासत है डिज़ाइन में, उसने सराहा। मुझे भी लगाना आती है, अच्छी सी कोन मंगवा लेना, लगा दूंगी। माही ने बहुत मोहब्बत से उसे देखा। मुझे नहीं शौक़ मेहंदी वेहंदी का, मेरा दिल नहीं चाहता कुछ भी करने को, उसने बेजारी से जवाब दिया। क्यों, क्या हो गया है तुम्हारे दिल को? माही ने बड़ी गहरी निगाह से उसको तोलने की कोशिश की थी। खाला, एक बात पूछूं? उसने एकदम पैंतरा बदला। आपने खुशी के साथ पापा से शादी की है? माही ने उसके अंदाज़ पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। जाहिर है, वरना मुझे कौन मजबूर कर सकता था। अच्छा, क्या आपको पता चल गया था कि पापा आपको पसंद करते हैं? ना। माहिन को ढेर सारी शर्म से आ गई। उसने रोशी के रुखसार पर हल्की सी चपत लगाई। नाश्ता आप करोगी तो दोपहर का खाना कब खाओगी? कॉलेज बंद होते हैं तो यही करती हो, उसने बात घुमा दी। कभी कभी तो यकीन करें, मुझे 100% यकीन होता है कि मैं बेहद अहमक हूँ। कोई मेरी बात को अहमियत ही नहीं देता। वो बुरा मान गई थी। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी खासी समझदार हो। माइन को बहुत हंसी आ रही थी मगर उसने ज़ब्त से काम लिया। अच्छा ये बताओ, देर तक क्यों सोती रही? रात को देर से जो सोई थी उसका मूड हुनूज़ ऑफ था। और देर से क्यों सोई थी? नींद नहीं आती, उसने साफ बात की। और नींद क्यों नहीं आती? पता नहीं, वो नज़रें चुरा गई। पता नहीं रोशाने, तो मुझे इस मर्तबा इतनी बदली हुई क्यों महसूस हो रही हूँ, यूँ जैसे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्त वाक़या पेश आया है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे अंदाज़, हर चीज़ बदली हुई है। माही ने बड़ी संजीदगी से कहा। अपनी मंगनी से खुश नहीं हो? ये भी कोई खुशी की बात है? उसने मुंह बनाया। सारी दुनिया में लड़कियों की मंगनियाँ होती हैं,
तो फिर क्या डायरेक्ट शादी खुशी की बात होती है? वो शरारत से बोली। कम अज़ कम मुझे तो अपनी शादी वादी से कोई दिलचस्पी नहीं। रोशी ने मुंह बनाया। फिर अपनी दिलचस्पी का नाम बताओ, माहिन ने कहा और मायनी खेज़ अंदाज में हंस पड़ी। रोशी का दिल धड़क गया। जी मैं समझी नहीं, उसने तजाहिल बरता। समझ तो गए हैं तुम्हारे अच्छे खान और फरिश्ते भी। चलो मगर हम फ़िलहाल ये मौजू मौकूफ़ करते हैं, फिर किसी अच्छे वक्त में बात करेंगे। माहिन ने गुल्लो को आते देखकर मौजू बदल दिया। बाबा साहब कह रहे दुल्हन को हॉल में लेकर आओ, सब घर वालों के साथ तस्वीरें बनेंगी। खींचेगा कौन? ध्यान उसी दुश्मन जहाँ की तरफ जाता था। उसने पूछा। इक्का बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, गुल्लो ने बताया। इक्का? माहिन ने सवालिया अंदाज में रोशी की तरफ देखा। गुल्लो आपा के बड़े भाई, समिया भाभी के शौहर नामदार। रोशी ने गायबाना तारुफ का मरहला तय किया। रोशी तो अभी नाश्ता करेगी। माहिन ने गुल्लो की तरफ देखा। हाँ तो आ जाएगी, वहाँ भी देर तक मिशन होगा। गुल्लो हंसकर गोया हुई। चलें आप तो उठें, उन्होंने माहिन से कहा तो माहिन दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। लाल खान नहीं आया? बालों की माँ ने उसे पहली मर्तबा तन्हा घर में दाखिल होते देखकर ताज्जुब से सवाल किया। बालों ने कोई जवाब नहीं दिया और साथ लाया हुआ बैग एक तरफ रखकर थके थके अंदाज में बैठ गई। तबीयत कैसी है तेरी? चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। बालों की माँ फिक्रमंद सी हुई। अभी मुझसे बात मत करो माँ, आराम करने दो मुझे, उसने बेजारी से कहा। तो क्या हल चला कर आ रही है? वो बिगड़ कर बोली। रात भर सोई नहीं हूँ, नींद आ रही है मुझे। क्या मल्हार गाती रही है रात भर? उसकी माँ खटक सी गई थी। हाँ सारे पक्के राग गा कर आई हूँ, बस अब तुम चुप हो जाओ, उसी तरह बेजार कुन अंदाज में बोली। उसकी माँ ने घड़ी भर को उसके सरापे पर नज़र डाली और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। बालों आंखों पर बाजू रखकर लेट गई। अरे तेरी सोने की चूड़ियाँ कहाँ हैं? उसकी माँ दोबारा आई तो नंगी कलाइयाँ देखकर ज़ब्त न कर सकी। आखिर सारे मोहल्ले में उसकी बेटी के दर्जन भर सोने की चूड़ियों के चर्चे थे। जिसकी थी दे आई हूँ, वो सड़ लहजे में गोया हुई। किसकी थी? वो एकदम बदहवास सी हो गई। लाल खान की, और किसकी? अब वो पहनेगा चूड़ियाँ? वो हैरत से बोली जिसमें गुस्सा भी था। बालो चुप रही। क्या पूछ रही हूँ मैं? उसकी माँ के तो आसान ख़ता होने लगे। अम्मा चुप भी हो जाओ, क्या चूड़ियाँ लगा रखी हैं? चूड़ियाँ नहीं थी, वो आग की बेड़ियाँ थी, उतार आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। उसकी माँ जो फिर बाहर जाने लगी थी गिरती पड़ती पलंग तक वापस आई। लड़ कर आई है? लड़ाई होना तो चाहिए थी मगर हुई नहीं, बगैर लड़े आ गई हूँ, तुम फिक्र न करो, 25,000 मेहर के भिजवा देगा वो। हाय, उसकी माँ ने सीने पर हाथ मारा। ना मुराद, क्या कागज़ ले आई है? यही समझो, उसने सुकून से जवाब दिया। क्यों समझूं यही? जो हुआ है वो बता, घर से निकाल दिया उसने तुझे? उसकी माँ का तो दिल बैठने लगा। उसमें खड़ा होने की सकत नहीं रही, फर्श पर बैठ गई। जो समझ रही हो वही हुआ है, और क्या बताऊं? वो चिढ़ कर बोली। अरे वो तो बड़ा भला आदमी था, एकाएकी उसे क्या हुआ? क्यों कालक मली उसने हमारे मुंह पर? अरे अल्लाह, अरे उलट गई मैं, बर्बाद हो गई। वो 72 सीने पर मारकर रोने लगी। ये क्या तुम बयान कर रही हो? मर गई हूँ मैं, वो बेजारी से बोली। अरे काश मर जाती, तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक न रखा, करमो जली। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। देखो अम्मा, बंद करो ये रोना धोना, जब मुझे कोई दुख नहीं तो तुम्हें क्या है? वो गहरी गहरी सांस लेती उठ कर बैठ गई। अरे कितनी मनहूस है तू, भरा घर रास ना आया तुझे? औरत का रोना कम ना हुआ। अरे लूट कर यहाँ क्यों आई है? समंदर में क्यों न डूब मरी? आधी उम्र तुझे ब्याने की फ़िक्र में गंवा दी, आधी दुख में जाएगी। किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी? अगर तुम्हें इतना ही दुख है तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी, मगर खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ। कहाँ चली जाएगी? दूसरा खस्सम ढूंढ लिया है कलमुही। वो मज़ीद फूट फूट कर रोने लगी। बालो दोबारा लेट गई। अरे बालों के अब्बा, पहले ही कहा था, अच्छी तरह देख लो, नहीं सुनी मेरी, आ गई मेरे सीने पर मूंग डलने। बालो उठकर दूसरी तरफ बरामदे में पड़े तख्त पर आकर लेट गई, पर उसने दीवार पर आ लटकी थी। उसने अनजान बनकर आंखों पर बाजू रख लिया था।